हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका फिजियोलॉजी ई पाठशाला की क्लिनिकल केस सीरीज में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्रिनोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में जो कि है कशिंग्स सिंड्रोम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको इस चैनल के वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं आज के पेशेंट से। Today we have Mr. Bob, a 38-year-old corporate executive, who has presented with the complaints of weight gain, excessive fatigue and weakness, and reddish stretch marks over his abdomen since the last 2 months. On being inquired about his personal history, he reveals that he is a non-smoker, non-alcoholic, but has been taking steroids since the past 1 year for rheumatoid arthritis. On examination, the doctor notes that the vitals are: the temperature is normal, heart rate 96 per minute, blood pressure 160 by 98, respiratory rate is 15 per minute. Patient has pot belly with abdominal striations, a reddish puffy face. There is a hump at the back of his neck. He has development of breast tissue, that is gynecomastia, and there is thinning of arms and legs. Preliminary lab investigations reveal a high blood sugar and a deranged lipid profile. तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम बात कर रहे हैं कशिंग सिंड्रोम के बारे में। Let's review those 4 key points on the basis of which we have made this diagnosis. Number 1 is the thinning of limbs with increased fatigability. Then is flushing and puffiness of face. Then is hump at the back of neck and pendular abdomen with striations. जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि कशिंग सिंड्रोम इज ड्यू टू एन एलिवेशन ऑफ कॉर्टिसोल लेवल्स इन द ब्लड। तो इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कॉर्टिसोल के बारे में कुछ प्रिलिमिनरी कंसेप्ट्स को भी रिव्यू कर लेना चाहिए। रिगार्डिंग द सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिसोल, it is to be noted that it is the zona fasciculata layer of the adrenal cortex which is involved in the production of these glucocorticoids, whereas the other two layers, that is the zona glomerulosa and zona reticularis, they are involved in the production of other two hormones, that is the adrenal androgens and mineralocorticoids. अगर बात करें रेगुलेशन ऑफ कॉर्टिसोल सिंथेसिस की, तो दिस इज अंडर नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन इन दी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। और होता क्या है कि जो हाइपोथैलेमस है वहां से रिलीज होता है CRH यानी कॉर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, विच एक्ट्स ऑन द कॉर्टिकोट्रॉप सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी, विच रिलीज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन या ACTH, which acts further on the zona fasciculata cells of the adrenal cortex, resulting in release of cortisol. और ये cortisol more than 90% immediately gets bound to plasma proteins, whereas the remaining part, it is free cortisol and exerts a negative feedback effect both on anterior pituitary as well as on the hypothalamus. उसके बाद बात करते हैं metabolic effects of cortisol की। अगर ये मेटाबॉलिक इफेक्ट्स देखें तो यार एग्जैक्टली ऑपोजिट टू दोज ऑफ इंसुलिन। लेट्स कंपेयर द टू साइड बाय साइड। ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, कॉर्टिसोल का मेन इफेक्ट है राइज इन द ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, और ये 3 मैकेनिज्म से होता है। नंबर 1 इज रिडक्शन इन द पेरिफेरल ग्लूकोज अपटिक, देन इज रिडक्शन इन द ग्लाइकोजन प्रोडक्शन, एंड द थर्ड इज द increase in the gluconeogenesis. On fat metabolism, cortisol causes excessive fat breakdown and consequently releasing large amounts of non-esterified fatty acids and triglycerides. On protein metabolism, cortisol has both an increased catabolic effect, that is breakdown of proteins, and a reduced anabolic effect, that is reduction in the protein synthesis. But this is not true in case of liver. Only extrahepatic tissues के अंदर ये protein synthesis reduce होगा। Now let's resume our discussion of Cushing syndrome with etiology of this condition. Etiologically, Cushing syndrome दो तरह का हो सकता है, ACTH dependent Cushing's and ACTH independent Cushing's. अगर नाम से ही हम इसको समझें तो ACTH डिपेंडेंट का मतलब है कि जैसे जैसे ACTH बढ़ता चला जाएगा, कॉर्टिसोल भी वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अब ये एक्सेस कॉर्टिसोल बनाने के लिए जो ACTH आ रहा है इन एक्सेस, वो कहाँ से आ रहा है? वो आ रहा है 3 सोर्सेस से। एक तो है ACTH secreting pituitary adenoma. The second cause is ectopic ACTH ट्यूमर्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, एंड द थर्ड रीजन इज ectopic CRH producing tumors.
कंट्रास्टिंगली द अदर कंडीशन इज ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग्स, और इसमें जो एक्सेस कॉर्टिसोल है उसका रिलेशन नहीं है कोई भी डायरेक्ट विद दी ACTH लेवल्स, रादर ज्यादा कॉर्टिसोल के जो लेवल्स हैं वो नेगेटिवली इनहिबिट करते हैं ACTH को, और ACTH लो हो जाता है इन कंडीशंस में। तो ये एक्सेस कॉर्टिसोल अब कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है अगेन 3 सोर्सेस से, या तो एड्रिनल ग्लैंड के किसी ट्यूमर से, या फिर हाइपर एक्टिविटी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से, या पेशेंट कोई एक्सोजीनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स काफी टाइम से ले रहा है, जैसे कि इस पेशेंट के अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए पेशेंट वाज टेकिंग स्टेरॉइड सिंस द पास्ट 1 ईयर। नाउ एक चीज आपने इसमें नहीं भूलनी है कि देयर इज अनदर कंडीशन कॉल्ड कशिंग्स डिजीज। दिस इज nothing but Cushing syndrome, but which is caused by specifically a tumor in the pituitary gland, that is pituitary adenoma. Now let's quickly discuss the physiological basis of various clinical features of these patients. सबसे पहला है वेट गेन। अब वेट गेन के दो मैकेनिज्म्स हैं। जब भी प्लाज्मा कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ते हैं तो कॉर्टिसोल की जो वीक मिनरेलो-कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी होती है वो पोटेंशिएट हो जाती है, जिसके कारण there is increased sodium and water retention adding to the weight gain. The second mechanism is that cortisol directly activates the orexigenic neurons of the hypothalamus, और ये न्यूरॉन्स appetite stimulating न्यूरॉन्स हैं। तो इन पेशेंट्स में इन न्यूरॉन्स की एक्टिविटी के कारण भूख ज्यादा लगती है, जिसके कारण पेशेंट ज्यादा खाना खाता है और उसका वेट बढ़ जाता है। The next important feature is excessive and easy fatigability. कई बार तो पेशेंट बिना काम के ही थक जाता है, और इसका कारण क्या है? इट इज मेनली बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कॉर्टिसोल ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, जो कि है इंक्रीज कैटाबॉलिज्म ऑफ सेलुलर प्रोटीन्स स्पेशली इन मसल बट नॉट इन लिवर, एंड ऑल्सो देयर इज अ रिडक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मसल प्रोटीन्स बिकॉज ऑफ द इनहिबिशन ऑफ द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। और इससे होता क्या है? देयर इज इनहिबिशन ऑफ द मसल ग्रोथ एंड इंक्रीज मसल ब्रेकडाउन, और इन दोनों कारणों से देयर इज physical fatigue and thinning of the arms and legs. The next important and a diagnostic feature of Cushing's is moon phase. जैसा कि आप इस रियल पेशेंट पिक्चर में देख रहे हैं, जब इस पेशेंट को Cushing's नहीं था तो इसके फेस के कंटूर्स को अगर कंपेयर करें आप, जब इसको Cushing's हुआ तो उसके फेस के कंटूर हो गए राउंडिश, एंड देयर इज पफिनेस ऑफ द चीक्स एंड देयर इज रेडिशनेस ऑफ द फेस। The next important feature is buffalo hump. Again, this is also very typical of Cushing's, और इसमें क्या होता है कि there is excessive deposition of subcutaneous fat at the nape of the neck, और ये cosmetic disfigurement प्रोड्यूस कर देता है इन पेशेंट्स में। ज्यादातर ऑथर्स इसका रीजन इडियोपैथिक मानते हैं, बट सम ऑथर्स से दैट इट इज बिकॉज ऑफ द फैट redistribution at the neck area during the lipolysis due to increased cortisol levels. The next important feature is pendular or pot-shaped belly with reddish purple striations, और इसका कारण क्या है कि जो एक्सेसिव कॉर्टिसोल है वो प्रोटियोलाइसिस तो करता ही है, साथ में वो अडीमा भी कर देता है बिकॉज ऑफ सोडियम वाटर रिटेंशन। अब एब्डोमेन के अंदर जो ये प्रोटियोलाइसिस हो रहा है, स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल मसल्स की, तो जब इन मसल्स की वीकनिंग होगी along with edema of this area, so there will be excessive stretching and bulging of the abdominal wall, जिसके कारण there will be rupture of underlying soft tissues and vessels which will ultimately produce the striations. इसके अलावा कुछ और क्लिनिकल फीचर्स हैं जो कशिंग सिंड्रोम के बहुत सारे पेशेंट्स में देखी जाती हैं। लेट्स क्विकली रिव्यू ऑल ऑफ देम। मेंटल चेंजेस की बात करें तो एंजाइटी, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, आई के अंदर इंक्रीज टेंडेंसी फॉर कैटरैक्ट्स, पेशेंट रिपोर्ट्स excessive bruisability with minimal trauma and poor wound healing. There is gynecomastia in male patients, peptic ulceration in the patients. Sexual changes की बात करें तो males can suffer from impotency, females के अंदर irregular menses and sterility. Patients के अंदर the bones they are extremely brittle and with minimal trauma fractures are seen. There is a muscle wasting of extreme degree and extreme thinning of arms and legs. The overall immune system activity is also suppressed because of high cortisol, and this leads to repeated and severe chest infections. In patients में complete blood count, fasting blood sugar, lipid profile, cortisol and dexamethasone suppression test करवाया जाता है. Let's quickly review all these investigations as well. Complete blood count में जो most striking feature है वो है a rise in the WBC count, और especially more so for neutrophils and eosinophils.
फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल इज रेज्ड ड्यू टू इम्पेयरमेंट ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस। लिपिड प्रोफाइल की बात करें तो देयर विल बी अ राइज इन द ट्राइग्लिसराइड्स, एलडीएल एंड cholesterol level, whereas the good cholesterol, that is the HDL levels, are low. Cortisol levels, they remain high both in plasma as well as urine. Dexamethasone suppression test is a special investigation for these patients. ये डायग्नोस्टिक भी है और डिफरेंशिएट करने में भी हेल्प करता है ACTH डिपेंडेंट और ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम के बीच में। The principle of this test is that dexamethasone, जो कि एक potent synthetic corticosteroid है, it inhibits the corticotrophs of the anterior pituitary, just like cortisol negatively inhibits these cells, resulting in reduction in the ACTH levels and reduction in the cortisol levels. प्रोसीजर क्या है कि इसमें हम पेशेंट को ओरल डेक्सामेथासोन देते हैं इन द इवनिंग एंड नेक्स्ट मॉर्निंग उसके सीरम ACTH और कॉर्टिसोल लेवल्स को एस्टिमेट कर लिया जाता है। अब इस टेस्ट में होता क्या है कि लो डोज डेक्सामेथासोन 1 मिलीग्राम टैबलेट इज गिवन टू द पेशेंट और उसके कॉर्टिसोल लेवल्स करवाए जाते हैं। अगर नॉर्मल हैं ये लेवल्स तो उस केस में पेशेंट या तो कशिंग्स का नहीं है या वो पेशेंट का कोई और कारण हमें ढूंढना है। अगर वो हाई कॉर्टिसोल हो जाता है उस केस में तो पेशेंट इज ऑफ कशिंग सिंड्रोम और फिर उसके ACTH लेवल्स को भी मॉनिटर किया जाता है। अगर कॉर्टिसोल लेवल्स हाई है और ACTH लेवल लो है तो ये ACTH इंडिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम का केस है और इस केस के अंदर फिर आपको रूल आउट करना है एक्सोजीनस स्टेरॉइड यूजेज को। इफ द पेशेंट हैज अ हिस्ट्री और एविडेंस ऑफ यूजिंग एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स तो उनको टेपर ऑफ करवाना है और अगर ऐसी कोई हिस्ट्री एविडेंस नहीं मिलता है देन यू शुड स्ट्रांगली सस्पेक्ट फॉर एड्रीनल ट्यूमर्स एंड अकॉर्डिंगली गो फॉर द इमेजिंग। लेकिन इसके बिल्कुल उलट अगर ACTH लेवल्स हाई आते हैं तो पेशेंट इज हैविंग ACTH डिपेंडेंट कशिंग सिंड्रोम और इसमें डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट को रिपीट किया जाता है विद हाई डोजेस दैट इज 8 मिलीग्राम टैबलेट्स के साथ और अगेन कॉर्टिसोल और ACTH को फिर से मॉनिटर किया जाता है। अगर इन दोनों हार्मोन्स लो हैं तो कशिंग सिंड्रोम का कॉज है पिट्यूटरी ट्यूमर यानी इट इज अ केस ऑफ कशिंग्स डिजीज एंड अकॉर्डिंगली इमेजिंग शुड बी ऑर्डर्ड फॉर पिट्यूटरी ट्यूमर। Whereas in the opposite scenario, जब cortisol और ACTH दोनों ही हाई हैं तो कारण होगा most probably an ACTH producing tumor which is ectopic in location और ये most commonly तो है small cell lung carcinoma जिसको imaging से confirm किया जाता है। लास्टली बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ दीज केसेस में और इसको हमने कैटेगरीज जनरल और स्पेसिफिक में डिवाइड किया है। जनरल ट्रीटमेंट की दो मोडालिटीज हैं। Number one is to control the hypertension by giving angiotensin converting enzyme inhibitors such as captopril, enalapril, or we can give angiotensin 2 antagonists such as losartan. Beta blockers भी दिए जा सकते हैं। All these drugs can be given alone or in combination. Then we go in for hypolipidemic drugs to correct their lipid profile. जो राइजिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल्स हैं उनको करेक्ट किया जाता है बाय गिविंग इंसुलिन अलोंग विद सम ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स। अगर पेशेंट कोई एक्सोजीनस स्टेरॉइड्स ले रहा है ऑलरेडी तो इनको या तो रिड्यूस किया जाएगा या इनको टेपर ऑफ किया जाएगा। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास तीन मोडालिटीज हैं। नंबर वन इज यूजिंग द ड्रग्स विच इनहिबिट द स्टेरॉइड यानी कॉर्टिसोल सिंथेसिस और इसमें है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग मिटायरापोल। मिटायरापोन ब्लॉक्स 11 बीटा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो कि एक की एंजाइम है ड्यूरिंग कॉर्टिसोल प्रोडक्शन इन द एड्रिनल कॉर्टेक्स। ट्यूमर थेरेपी भी इस केस में कंसिडर की जा सकती है। अगर ट्यूमर्स डिटेक्ट होते हैं तो रेडिएशन या कीमोथेरेपी से वो ट्रीट किए जा सकते हैं। अगर ये दोनों ही टेक्निक्स इफेक्टिव नहीं है या फिजिबल नहीं है देन वी गो फॉर सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द ट्यूमर एंड इफ even that is not feasible or is ineffective then as a last resort we go in for bilateral adrenalectomy in these patients। but ध्यान ये रहे कि adrenalectomy की अगर डॉक्टर they are deciding for that then the patient has to be supported for hormone replacement therapy throughout his remainder of his life। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे अगली बार एक और नए केस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।